जब मैं क्लास 12 में था, I wanted to manifest a great result. And I don't mean manifest just in the English sense, I mean in the law of attraction sense as well. I was deep into The Secret. बचपन से मैंने वो किताब पढ़ रखी थी. And 12th में मुझे लगा, this will work for me. मैं कुछ कर नहीं रहा था, so I was like, how do I ensure कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए? And then I went down the rabbit hole. But that experience gave me all the insight I'm about to share with you today about manifesting good marks in class 12. So अभी कभी subscribe कर दो. But be ready, this is going to be a very real talk. अगर आपको लगता है कि आपके एक नोटबुक में लिख के आई एम सीकिंग 96%, आई विल स्कोर दिस नंबर ऑफ मार्क्स XYZ सब्जेक्ट में, ये सब लिख के बार बार कमेंट सेक्शंस में, नोटबुक्स में, अगर आपको लगता है ये सब करके आपके नंबर आ जाएंगे, तो आप मिस्टेकन हो. Let's talk about manifestation. What is manifestation? It is about making the universe believe, or any other higher power believe, that you will be able to and are deserving of something, whatever it is. In this case, it is marks. So what do you think the world responds to? I'm not talking about any higher power here. What do you think the world responds to? Because अभी अगर हम marks की बात कर रहे हैं, ये एक worldly चीज़ है. अगर आप अपने एग्ज़ाम में सही आंसर्स लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आप सही आंसर्स नहीं लिखोगे आपके नंबर नहीं आएंगे. Understand that. Now, if you want to manifest good marks in class 12, these things solely dependent on what you do in your answer sheet and nothing else. And how do you ensure कि आपकी आंसर शीट में सही आंसर्स होंगे? डे बाय डे स्टडी करके, चीज़ों को प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट्स लर्न करके. सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड रिजल्ट, एंड बाय ऑल मीन्स आई ट्रूली बिलीव कि इन चीज़ों करने से आपका बिलीव बढ़ता है, एंड ऑब्वियसली देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द यूनिवर्स's पावर, बट what do you think will move the needle? What do you think manifestation is about? It is about making things happen, creating something. How do you create good marks? By putting in the work. अगर आप दुनिया भर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाओगे, एंड यू आर वेल विद इन योर राइट टू डू दैट. 12th में मैं भी करता था, एंड मे बी उनको करके मेरे नंबर हो गए, आई डोंट नो. But I can't ignore the fact that I busted myself off, man. I worked day and night tirelessly till the wheels fell off, pun intended. दिन रात एक कर दी, तब जाके नंबर आए. Whom do you think the universe will believe in? Whom do you think the law of attraction will work for? Somebody who doesn't work and just wishes? Or somebody who works and wishes? You see, the world and energies around us, they look for something called deserve. Do you deserve good marks? Ask yourself this and comment right now. Do you really think you deserve good marks? And be honest with yourself. अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम्स तक. So अगर आप अभी honest हो गए अपने पास से और अपने साथ, that's when things can change. So don't lie to yourself. Tell me, do you deserve good marks? Are you putting in the effort? Are you working? Are you studying? Or are you just whiling away time? Ask yourself if you think manifestation can work without effort. Why am I making this video? क्योंकि जो मैंने 96% वाला वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस. लेकिन आधे लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो उनका आंसर होगा नो. You see, you can only believe in things wholeheartedly. If you believe in manifestation and you ascribe to the idea of manifestation, understand that one of its core principles is doing the thing, making it happen. So what is manifesting marks? Your effort, the time you put in, whether or not you've gone through the NCERT 7, 8, 900 times. Whether or not you wake up every single day with one laser focused mission. Are you doing that? Because if you aren't, you're not really helping yourself manifest good marks. Straight up. अपने आप से पूछो कि क्या आप एक्शंस ले रहे हो, या फिर आप सिर्फ अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाए जा रहे हो. जब हम एक नोटबुक में लिखते हैं या अपने मिरर में एफर्मेशंस करते हैं, आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग. सो इन माय बिलीफ सिस्टम देयर इज सम रेमनेंट ऑफ दैट. सो
जब हम ये सब करते हैं, नंबर वन, वी आर प्रेइंग टू द यूनिवर्स ऑफ कोर्स. नंबर टू, इट ऑल्सो हैज़ अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट इन द सेंस दैट इट गिव्स अस अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज ऑफ अस. व्हेन वी डू दोज थिंग्स, उसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है. इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स. हमें लगता है हम होपलेस होते हैं, हम एवरेज फील करते हैं. बिलीव मी, आई अंडरस्टैंड माय डियर चैम्पियंस. और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती हैं. मिरर के सामने बोलना, आई डिज़र्व थिंग्स, आई विल अचीव दिस, आई विल मैनिफेस्ट 96 मार्क्स, अनडाउटेडली मुझे भी काफ़ी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस इन चीज़ों ने दी थी. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. एक्चुअल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस. लेट्स से आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपके 33% आए हैं प्री बोर्ड्स में हाइपोथेटिकली, लेकिन आप सुबह उठते हो, काम करना शुरू करते हो, दिन के घंटे घंटे पढ़ाई करते हो, सैम्पल पेपर देते हो और देखते हो अच्छा 33 से मेरा 43 हो गया. नेक्स्ट सैम्पल पेपर देखते हो रिवीजन करने के बाद, ओ नाउ आई एम 55. आप पढ़ाई करते हो, दोबारा रिवीजन करते हो, 65. आप दोबारा पढ़ाई करते हो, 80. आप दोबारा पढ़ाई करते हो, 90. आप दोबारा पढ़ाई करते हो, 95. बोर्ड एग्जाम देके आते हो, 99% आ जाते हैं. तब आप कभी अपने आप को डाउट नहीं करोगे. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस. Confidence comes when you've done and put in the volume, when you've done the work. If you see yourself improve, when you do things long enough, the confidence will come, and that confidence will be based not on your emotions but on your sheer ability and competence of being a Grand Acad champion. So, what is the point of this video? The point is, do those things. Write things down कि मेरे 96 आएंगे, the universe will bless me, because the universe is blessing you, but bless yourself. Give the universe something to trust you for. Put in the work on a daily basis. 1 + 1 is always 2. So 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 पढ़ाई के घंटे compounded over time will give you the results you want, maybe even more. और टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए मैं आपके ये वीडियोस डेली डाल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में मैसेज ड्रिल हो जाए कि आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं. उन एबिलिटीज़ को वेस्ट मत करो. You have the ability to manifest a good result, and if you want to manifest it even more surely, get the help you need by joining Grand Acad's courses for physical education and English. ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रोज़ पढ़ने चाहिए 30 मिनट के लिए. मैं आपको रोज़ बताता रहता हूँ, बट यही सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंटेज को बूस्ट करेंगे. बाकी सब्जेक्ट्स कितना भी पढ़ लो लिमिट हो जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स को इतना सा एफर्ट दे दिया ना, इतने रिटर्न मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी क्लास 12 की परसेंटेज ऊपर चली जाएगी. चेक द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. ये हमारे कोर्सेज हैं, बहुत अफोर्डेबल कर दिए हमने. इसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, लाइन बाय लाइन हेल्प बुक लेक्चर्स मिलने वाले हैं हमारी खुद के, लाइन बाय लाइन नोट्स मिलेंगे, उसकी भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे जो आप ऐप में या वेबसाइट पे व्यू कर सकते हो. उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ विद आंसर की जो हमने खुद बनाया है, जो बोर्ड एग्जाम में उठ के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर सम रीजन. और बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइव मेंटोरशिप सेशंस हो रहे हैं, लाइव रिविजन सेशन शुरू हो जाएंगे. गाइज, इसको बिल्कुल मिस मत करना. अगर 12वीं में अच्छे नंबर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाने चाहते हो, चेक द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट अवे. खैर, दैट वाज द वीडियो गाइज. कमेंट डाउन बिलो आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू मैनिफेस्ट गुड मार्क्स. जब मैं 12th में था, मैं भी ये चीज़ें करता था, एंड दे हेल्प्ड मी बिलीव इन माई सेल्फ. आई नो आई वॉज एबल टू मैनिफेस्ट गुड मार्क्स इन क्लास 12, which is 96.2%, was through effort. So take what you will, continue believing in yourself, believe in the universe, but believe in your actions as well. See you in the next video. All right, till next time, keep winning, you champions.